Hello everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, in previous video we deal with lesson number 10, uh, motion and measurement of the distances. Okay. So student, in yesterday we discussed about the history of transport. Yes. So today's topic is that how wide is the desk. So we learn about the measurement. Okay. We learn the terms which is wide with the help of desk. Okay. The next is some measurements. Then second is standard units of measurements, and then last topic is that correct measurement of the length. Okay, so this topic we discuss in the today's video. Okay, so let's see the first topic, how wide is this desk. So how far have you traveled? How wide is the desk? Okay, so how did people know how far they have traveled? Okay, so सभी people को कैसे पता रहता है कि हमें कितने दिन travel करना है, कहाँ travel करना है? How will you know whether you can walk all the way to your school or whether you will need to take a bus or rickshaw to reach your schools? When you need to purchase something, it is possible for you walk to the market. How will you know the answer to these questions? It is often important to know how far a place is, so what that can have an idea how we are going to reach that place, walk, take bus or a train, ship, an aeroplane or even a spacecraft. Okay, so student, इस टॉपिक में ये कहा जा रहा है कि अगर हमें स्कूल जाना है तो हमें कैसे पता रहता है कि हम पैदल जा सकते हैं कि नहीं, क्या हमें रिक्शा की ज़रूरत है या फिर बस की ज़रूरत है। अगर हमें कुछ खरीदने जाना, अगर हमें मार्केट जाना कुछ खरीदने के लिए, तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें रिक्शा से जाना चाहिए, बस से। अगर हमें कहीं दूसरी जगह जाना है तो ट्रेन से जाना है कि शिप से जाना है, एरोप्लेन से जाना है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यस, समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो. In Paheli and Bujo's classroom, there are a large desks which are to be shared by the two students. Paheli and Bujo share one desk but frequently end up fighting that the other is using a large share of the desk. तो पहली और बुजो के स्कूल में डेस्क रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ टाइम क्या होता है कि उन दोनों में फाइटिंग हो जाती है क्योंकि कोई ज़्यादा स्पेस में बैठ जाते हैं तो कोई कम स्पेस में। ओके, ऑन द टीचर सजेशन, तो इस पे टीचर उन्हें सजेस्ट करती है। दे डिसाइड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट, ड्रॉ अ लाइन, सेपरेट द टू हॉल्स ऑफ द डेस्क। बोथ देम आर very fond of playing gilli danda with their friends. Bujo brought a set of gilli and danda with him. Here is how they try to measure the length of the desk using the danda and the gilli. Okay, तो ये जो दो मैम उनको सजेस्ट करती है कि आप क्या करो, डेस्क के मिडल से आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो और जिससे तुम आधा आधा बेंच क्या करो, शेयर करो। तो दोनों के पास में गिल्ली डंडा रहता है और ये देखिए कि गिल्ली डंडा से वो किस प्रकार यहाँ पे देखो मेज़र कर रहे हैं। यस, ये गिल्ली डंडा से देखो, तो ये दोनों क्या हो गए, हाफ आप मेजर गए, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ डेस्क विद द गिल्ली एंड डंडा। ओके, तो क्या होता है, द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल टू द डंडा लेंथ एंड टू लेंथ ऑफ द गिल्ली. Drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with half of the desk equal to danda and gilli in length. After a few days, the marked line gets whipped out. Bujo now has a new set of gilli and danda as he lost his old one. Here is how the length of the desk seems to be measured using the gilli and danda. तो क्या होता है कि ये गिल्ली डंडा से देखो कैसे इक्वली क्या के लिए मेज़र करके इन्हें एक लाइन ड्रॉ कर दी। बट कुछ दिन के बाद में वो लाइन क्या हो जाती है, इरेज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वो एक दूसरा गिल्ली लाते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो साइज़ क्या है, बड़ा है, तो इससे क्या होता है, एग्जैक्टली दोनों का एग्जैक्टली डेस्क क्या होता है, इक्वल इसमें बराबर नहीं होता। वाई? क्योंकि क्या होता है कि वो जो पुराना गिल्ली डंडा था वो कैसा था, छोटा था, और इसकी लेंथ क्या है, बड़ी है। सो दैट्स वाई लेंथ की जो है उसका जो सेट है गिल्ली डंडा का वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ओके, देन hello, now when measured with the new set of the gilli and danda, the desk length seems to be about 2 danda length and 1 gilli length. Okay, with a small length still left out. तो क्या होता है, दो गिल्ली देखो, दो डंडे से हो जाती है और सिर्फ बीच में एक ही गिल्ली आती है। ओके, then one thing they
could do is take a small length of a string and mark 2 points on it, and this will be string length. Okay, they can measure the width of the desk in a string length, and how can they use the strings to measure distance less than the length of the string? They can fold the string and mark it 1 by 2, 1 by 4 and 1 by 8 string length. Okay, देखिए क्या करते हैं, उसके बाद में थ्रेड लेते हो, थ्रेड से देखिए किस प्रकार ये मेजर कर रहे हो. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज दैट सम मेजरमेंट. तो यहाँ एक एक्टिविटी है, वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच यू डू दिस एक्टिविटी 1 by 1 यूजिंग योर फुट एज अ unit length. Measure the length and breadth of the classroom. It is possible that while measuring this you may find some parts remain to be measured as it's smaller than your foot. Use a string to measure the length of a part of your foot as you did before. Record your observation in table 10.1. ओके, सो ये आपको टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक्टिविटी है, यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट का नाम राइट करना है, लेंथ ऑफ क्लासरूम की लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है वो आपको फुट से मेज़र करना है. उसके बाद में देखिए ये एक सेकेंड एक्टिविटी है जहाँ पे आपको हैंड स्पा का यूज़ करके आपको हैंड स्पा एज अ यूनिट आपको क्या करना है, मेज़र करना है टेबल की विड्थ. ठीक है, क्लासरूम में जो डेस्क है उसकी मेज़र करना है. ओके, सो स्टूडेंट वी सी दैट द मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी. ओके, तो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट मतलब क्या होता है, द कंपैरिजन ऑफ अ अननोन क्वांटिटी जो है विथ नोन क्वांटिटी, दिस नोन एज फिक्स क्वांटिटी. उसी को कहते हैं फिक्स क्वांटिटी, इज कॉल्ड अ यूनिट. उसे ही क्या कहते हैं, यूनिट. द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट एज एक्सप्रेस इन 2 parts. वन पार्ट इज अ नंबर एंड द अदर पार्ट इज द यूनिट द मेजरमेंट. सो जो मेजरमेंट है हम 2 प्रकार में एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक होता है वन पार्ट इज अ नंबर एंड द अदर पार्ट कौन सा होता है, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट. फॉर एग्जाम्पल इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ्स ऑफ योर फुट एंड 12 नंबर एंड फुट लेंथ इज द यूनिट सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट. यस, देन नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड 10.2. ओके, आर ऑल द ये एक्टिविटी ये दिया हुआ है 10.1 और ये 10.2. एक फुटप्रिंट से करना है और एक हैंड स्पा से करना है. ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे यही एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है. उसके बाद है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. ओके, इन एंशिएंट टाइम द लेंथ ऑफ द फुट एंड द विड्थ ऑफ द फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वेयर कॉमनली यूज्ड एज अ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. तो पुराने ज़माने में क्या होता था, जो हमारे फुट है, लेंथ ऑफ जो हमारी फुट है, पैरों का, हाथ की जो फिंगर है, उससे क्या किया जाता था, डिस्टेंस को मेज़र किया जाता था. ओके, बट द पीपल ऑफ द इंडस वैलीज civilization must have used very good measurement of the length because we see evidence in evacuation of the perfectly geometrical construction. Yes, a cubit as the length from the elbow to fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of a length in other part of the world. तो ये जो क्यूबिट है, क्यूबिट लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर, मतलब जो हमारा ये फिंगर से लेके तो जो हमारा एल्बो है वहाँ तक ये एक, तो इसे एशियन टाइप में यूनिट लेंथ मेजर करने के लिए यूनिट करके यूज़ किया जाता था. ओके, पीपल ऑल्सो यूज़ द फुट एज अ यूनिट लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और जो फुट है, पुराने ज़माने में फुट को भी यूनिट ऑफ लेंथ करके यूज़ किया जाता था. ओके, सो पीपल मेजर्ड a yard cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. Okay, and the Romans measured with their pace or steps. Okay, so different कोई पैर का यूज़ करके, कोई हैंड स्पा का यूज़ करके क्या करते थे, पुराने ज़माने में मेज़र करते थे. ओके, इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वेयर एन अंगुल मीन्स उसे फिंगर कहा जाता है, और मुट्ठी मतलब उसे फिस्ट कहा जाता है, मतलब जो हमारे हाथ की मुट्ठी रहती है. इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर forearm as a unit of length of a garlands in many towns of India. Many such body parts of continue to be in use as a unit length when convenient. ओके, तो बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स है जिसका हम यूज़ करते थे मेजरमेंट के लिए. However, everyone's body parts could be slightly different size. Yes, तो सभी की जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, है ना.
This must have confused have caused confusion in measurement in 1719. The French created a standard unit of measurement called the metric system. तो जो फ्रेंच थे उन्होंने क्या क्रिएट किए एक स्टैंडर्ड यूनिट जिसे कहा जाता था मेट्रिक सिस्टम. ओके, फॉर द सेक यूनिफॉर्मली साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. द सिस्टम of units now used is known as the international system units. उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट मतलब SI यूनिट. द SI यूनिट ऑफ द लेंथ इज अ मीटर. और मीटर स्केल इज सोन इन द फिगर 10.6. सी दिस इज द मीटर स्केल एंड अ 5 सेंटीमीटर स्केल. कितनी सेंटीमीटर की है? 15 सेंटीमीटर की स्केल है. ओके, सो ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीज़न, है ना. हर मीटर जो है कितने की इक्वल डिवीज़न में है? 100. ओके, कॉल्ड सेंटीमीटर. ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीज़न कॉल्ड millimeter. So here is 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. तो एक स्टैंडर्ड यूनिट है ये. फॉर measuring the distance, meter is not convenient unit. We define it a larger units of length. It is called kilometer. Yes, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए एक ये यूनिट बनी हुई है, लार्ज यूनिट, जिसे क्या कहा जाता है? किलोमीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना रहता है? 1000 meter. Okay, so now you can repeat all our measurement activities using a standard scale and measure in SI units. Before we do that, we do need to know the correct way to measuring the lengths and distance. Then next topic is that correct measurement of length. So student, in our daily life we use various type of measuring device. Yes, हम लोग हर चीज़ें को डिफरेंट इससे मेज़र करते हैं. यस, किसी को स्केल से, किसी को कोई दूसरे डिस्टेंस, अगर ज़्यादा डिस्टेंस रहा उसे किलोमीटर से, है ना. फॉर एग्जाम्पल अ मेजरिंग लेंथ, टेलर क्या करता है? और टेलर यूज अ टेप, है ना. टेलर क्या करता है? टेप यूज़ करता है क्लॉथ के लिए, है ना. कोई मीटर रोड यूज़ करता है. फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस. यू कैन नॉट मेजर द गिर्थ ऑफ अ ट्री और साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग मीटर स्केल, है ना. तो हम मीटर स्केल का यूज़ करके चेस्ट अपनी काउंट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट मेजर द गिर्थ ऑफ अ ट्री एंड साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग मीटर स्केल. यस, फॉर मेजरिंग द टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस. For small measurements such as length of your pencil, you can use 15 centimeter scale from your geometry box. Yes, अगर छोटी चीज़ें हैं तो हम उसका स्केल का यूज़ करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं. अगर बड़ी चीज़ें हैं तो हम यूज़ नहीं कर सकते, है ना. तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे बस यही दिया हुआ है एक्टिविटी. मेज़रमेंट लेने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर. देखो जैसे दिया है ऐसे हमको करना पड़ेगा. ओके, देन इन सम स्केल द एंड में बी ब्रोकन, है ना. यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली. हमें जीरो मार्क क्लियरली, जिस स्केल में अगर जीरो मार्क नहीं दिख रहा है तो हमें उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा. ओके, है ना. देन दिस इज थर्ड, करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट. तो हमें एक अगर हम जहाँ से जिस ऑब्जेक्ट का जहाँ से मेज़र कर रहे हैं तो हमारा एक करेक्ट पोजीशन रहे, हमारा जो आई कांटेक्ट रहे वो करेक्ट रहना चाहिए. सी दिस इज़, यहाँ पे देखिए 3 है जो अलग अलग डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो उन्हें कुछ अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि उनकी जो पोजीशन है आई कांटेक्ट की क्या है? डिफरेंट है. उसके बाद आपको यहाँ एक्टिविटी दी रखी है, तो आपको ये एक्टिविटी स्टूडेंट आपको पढ़ लेना है. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन. सो स्टूडेंट, दिस टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन द